Start. Yeah, again, welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBSCIT, 5th sem, subject Enterprise Java. Second unit is going on. Last time we have seen the request dispatcher part. Some of the parts we have to see continue. We have seen the servlet context configuration, servlet context, and now today we continue with your cookies and session concepts and presented by Assistant Professor Bipin P. Vaidi. So we'll continue. Now this is your syllables. We are continuing with your request dispatcher part last time, and then application. Now cookies. We have to see the cookies and session. So see that now. Continue with your part. Send, redirect, and all that we have completed. Now attribute in servlet. So in servlet, attribute in servlet is an object that can get or removed from one of the following scope. When you give the request, when you say the session started, session means what? आपको पता रहेगा कि when you visit on the any website, so particular information they can be stored just like that. When you are entering your username password, that part also we can keep it as a save in the browser. So browser next time continue, they show you the username and password, and now they give the captcha part over there. We have to write the captcha and continue. So that is also session part है. Cookies बोलते हैं उसको. Visiting how many visitors are visiting on there. That part is that information or that documentation work they are keeping in the servlet. So request scope होता है, session scope होता है, और application scope होता है. So that's why we are using that attribute in servlet. तो ये attribute हम लोगों को देखें. So servlet program can pass information from one servlet to another. Of course, एक सर्वलेट फाइल से दूसरे सर्वलेट को रिक्वेस्ट करना सेशन स्टार्ट होने के बाद. जैसे हम लोग ने कभी कभी देखो गूगल सर्च में हम लोग जो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो कंटिन्यू आप लोग को दूसरा सर्चिंग कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट 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 पीछे भी आ सकते हैं, बैक बैक बैक. तो इसका मतलब दे आर पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर यूजिंग एट्रीब्यूट. So it is just like passing object from one class to another so that we can reuse the same object again. Back, forward, सेशंस फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेशन बैक कर सकते हैं. तो उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट इन सर्वलेट. सो यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफिक मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सेशन एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेसिंग से होता है. देयर स्पेसिफिक मेथड्स आर देयर. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 एट्रीब्यूट्स आर गिवन ओवर देयर. स्पेसिफिक मेथड है सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स एंड रिमूव एट्रीब्यूट. मतलब सेशन क्लियर भी कर सकते हैं. आपको मालूम है कुकीज हिस्ट्री. कुकीज इज वन टाइप ऑफ हिस्ट्री इन द ब्राउजर. Sessions also history we are keeping in like favorites and all that. So there are also sessions जो भी favorites में डालते हैं वो session में. There are set attribute, get attribute, get init parameter and remove attribute. These are the method we can use and use for servlet request, HTTP session and servlet context interface. तो पहला set attribute always set the given object in a application scope. हमेशा कोई भी एट्रीब्यूट अगर हम लोग सेट कर रहे हैं, जैसे एक नाम दे दिया सेशन को, नंबर दे दिया, नाम दे दिया, तो वो सेशंस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह एप्लीकेशन में यूज होगा. आफ्टर दैट गेट एट्रीब्यूट. गेट मतलब वी आर रिटर्न द एट्रीब्यूट फॉर द स्पेसिफाइड नेम. जो नेम हम लोग ने सेट किया है वो नेम से वो एट्रीब्यूट को हम लोग कॉल कर सकते हैं. Then returns get init parameter. Then returns the name of the context initialization parameters are enumeration of string object. खुद का भी कुछ parameters बनाना होगा तो हम लोग enumerations get init parameter names method use कर सकते हैं. और अगर हम लोग को remove करना होगा, remove मतलब हम लोग को निकालना है एट्रीब्यूट. सो विद द गिवन नेम फ्रॉम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वहां से हम लोग सेशन रिमूव कर सकते हैं. मतलब डिलीट कुकीज, delete history या clear history. this is a part of that remove attribute. हम लोग करते हैं कभी कभी हिस्ट्री क्लियर करते हैं, यूट्यूब का हिस्ट्री क्लियर करते हैं, ब्राउजर का हिस्ट्री क्लियर करते हैं. so that is called remove attribute. we are removing the cookies and session. got it? clear student? yes student? hello? Yes sir. okay, so one of the demo it is given over there, related get set attribute जो यूज कर रहे हैं रिलेटेड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. मतलब सर्वलेट के इंफॉर्मेशन के लिए गेट सेट इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दिया. सी दैट नाउ एग्जांपल.
import java.io.star, import java.servlet.star. This is the header files. Import java.servlet.http. It is for HTTP servlet request and HTTP servlet response. Then do get HTTP servlet request, object बनाया req, HTTP servlet response, object बनाया req. Now try के अंदर initialize किया. These are the all parts are the by default when you are creating the servlet. Response given by the set content type method text document में HTML में return आएगा. After that, print writer, that is display part with the out object, out.println we can use it. So उसके लिए response.getWriter and they will response. So response के लिए. Then servlet context. Context is given get servlet context related to information configuration of the servlet. We can use with the context part. Documentation part we are doing with the context. अभी उसी के अंदर हम लोग एक सेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे सर्वलेट कहाँ से आ रहा है, उस कंपनी का नाम. context.set.rate कंपनी नेम IBM. हम लोगों ने वैल्यू सेट किया, वहाँ पे 2 वैल्यू सेट किए. एक कंपनी का नाम बोला तो कंपनी क्या लिख के आएगा IBM. So these are the 2 attribute we set over there. फिर हम लोगों ने डिस्प्ले किया वेलकम टू फर्स्ट सर्वलेट out.println. फिर बाद में हाइपरलिंक दिया हुआ है. सी दैट नाउ हाइपरलिंक HTML we are using out.println. A tag, A for anchor tag, href for hyperlink reference equal to servlet 2. इसका मतलब दूसरे सर्वलेट फाइल को कॉल किए. तो visit, when you click on the visit, we go on the next servlet. फिर ये out.close क्लोज किया. Any exceptional handling it is there. तो उन्होंने catch लिखा हुआ है, exception ही. अभी आपको पता चल गया होगा कि ASP.NET में जो सिखाया जा रहा है वही चीज आपको जावा में try, catch, finally, throw, सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं. वहाँ पे भी रिक्वेस्ट के इंटरफेस थे, वहाँ पे भी आपको ट्राई कैच एक्सेप्शनल हैंडलिंग था, यहाँ पे भी वैसे ही है. ओके, बट यहाँ पे टोटली एडवांस जावा की उन्होंने दी हुई, क्योंकि जावा आपका अच्छी तरह से लास्ट टाइम हो जाए. C# हुआ नहीं है, इसलिए मुझे बेसिक पार्ट C# क्लियर करना पड़ता है. इसीलिए तो आप लोग वो जावा में और ASP.NET में अंडरस्टूड कर सकते हो. सो नाउ catch exceptionally out.println e. तो any errors related this coding आएगा तो आपको exceptional यहाँ से मैसेज डिस्प्ले करेगा. सेकेंड फाइल दैट इज योर servlet 2 फाइल. तो ये दूसरा फाइल आपका servlet 2. तो दिस दैट फाइल अगेन वी आर राइटिंग द सेम थिंग. और वो वहाँ पे यहाँ देख सकते हो कि हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट को गेट एट्रीब्यूट किया हुआ है. इसका मतलब सेट एंड गेट. तो स्ट्रिंग एन एक वेरिएबल लिया एन स्टोर करने के लिए. context.get एट्रीब्यूट कंपनी, जो कंपनी का नाम है वो गेट किया, और स्ट्रिंग है इसके लिए कन्वर्जन किया स्ट्रिंग और इट स्टोर्ड इट इन द एम. एंड देन आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग ओवर देयर out.println वेलकम टू एम. जैसे आप लोग यूजर नेम टाइप करते हो वेबसाइट पे और आपको ऊपर दिखाई देता है वेलकम यूर नेम, सो उसी तरह यहाँ सर्वलेट का काम है. गॉट इट? क्लियर? देन ये तो आपका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है. इसमें मैपिंग हो रहा है, 2 फाइल अलग अलग दिखाई दे रहा है, एक servlet 1 और एक servlet 2. clear student? Okay, so after that we will see the difference, but first of all we see the example of that servlet get set attribute. अभी कौन प्रेजेंट हुआ है जरा प्लीज फटाफट बता दो, कौन प्रेजेंट हुआ है? 38 सर राहुल गुप्ता. 38 प्रेजेंट. और कौन है? 7 गुप्ता राहुल. आगे 7 रोल नंबर 7. आगे बोलो. रोल नंबर 31 24 31 24 सर. ओके, आगे 38 हो गया. 28 कौन आया था? 20 कौन था सर? 31 की है ना आपने? 31 हो गया. ओके सर. के सामने 24 24 24 सर. 24 सिंह अनुभव. चलो हाँ सर. सॉरी 24 है ना. 25 पायल सिंह आती नहीं है. सर 45 35 यादव पूजा. 45 हाँ सर. ओके फाइन. हो गया सब लोग? और कोई बाकी है? सर 45 आपने 46 पे लगा है. 6 लगा है. लगा नहीं, अभी आया. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.
Now 5, new project. We have to take the web applications. Click on next. Type here servlet koi demo servlet 1. Yeah, servlet example. या get set example वो भी चलेगा. Then click on next. Glassfish server next. Finish. Yeah. Now यहाँ पे कोई भी हम लोग को बटन वगैरह कुछ भी बना नहीं रहे, हम लोग रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं. हेलो वर्ल्ड आएगा, उसके आगे कंटिन्यू. सोर्स पैकेज हम लोग एक न्यू माई पैक करके ले लेते हैं, पैकेज बनाते हैं. फिनिश. उसके बाद राइट क्लिक न्यू. पहला फाइल हम लोग सर्वलेट 1 ले लेते हैं. 1. नेक्स्ट ऐड टू डिस्क्रिप्टर एंड फिनिश. यहाँ पे हम लोग ट्राई के अंदर वी आर राइटिंग द कोड. क्या कोड दिया था हम लोग को? यहाँ हम लोग ने एक एट्रीब्यूट सर्वलेट कॉन्टेस्ट के थ्रू स्टोर किया था और वेलकम टू सर्वलेट डाला था और एक तो हम लोग वो HTML में ही करते हैं. कॉपी किया मैंने और HTML है टाइटल बॉडी के अंदर ही हम लोग ने गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ भी वैसे ही रहने दो, पता चलेगा. एंड देन पेस्ट. यहाँ पे हम लोग ने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट देखो ऐड किया, फिर गेट एट्रीब्यूट सेट है. यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ पे येलो कलर के ऊपर क्लिक करके ऐड टू इंपोर्ट javas.servlet कॉन्टेक्स्ट ये फाइल ऊपर चला जाएगा. दिस वन. ओके. देन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट.set एट्रीब्यूट कंपनी IBM फिर वेलकम टू फर्स्ट सर्वलेट. ये पहला सर्वलेट. अगेन वी आर क्रिएटिंग द न्यू सर्वलेट. उसका नाम देंगे हम लोग सर्वलेट 2 क्योंकि वहां पे हम लोग ने हाइपरलिंक दिया हुआ है सर्वलेट 2. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऐड टू डिस्क्रिप्टर एंड फिनिश. यहाँ पे हम लोग उस सर्वलेट का एट्रीब्यूट को सेट किया है, उसको गेट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग ये गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ भी हम लोग ले सकते हैं, हम लोग को चाहिए तो देखना है तो. लेकिन अगर हम लोग को वहाँ पे कोडिंग में गेट एट्रीब्यूट यूज करना है तो वी हैव टू यूज लाइक दैट कोडिंग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट एट्रीब्यूट एंड वेलकम. कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इट ओवर हियर. यहाँ पे भी इंपोर्ट फाइल होगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट javas.servlet contest. ये फाइल इंपोर्ट करेंगे, वो फाइल ऊपर चला जाएगा and that is the file O. Okay. Yeah. अभी यहाँ पे n out.println n सेमीकोलन नहीं दिया. फाइन. सो आपको अभी रन कर रहा हूँ. कैच लिया हुआ नहीं, यू कैन यूज द कैच ऑल्सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बिफोर फाइनली में. लेकिन अभी मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम. यहाँ पे 2 सर्वलेट है, एक गेट सेट एट्रीब्यूट किया हुआ है और दूसरे फाइल में वो गेट एट्रीब्यूट कंपनी का नाम दिखाई देना चाहिए. तो 2 एट्रीब्यूट को हम लोगों ने सेट किया. चेक कर लेंगे. When you link on the another servlet, it show the get attribute value also. Yeah, now running. अभी यहाँ पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स वाला कुछ भी किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी आप लोगों ने आ नहीं रहे. राइट. तो हम लोग एक काम करते हैं, उसमें JSP में एक बटन बनाते हैं, मैपिंग फाइल के वाला डायरेक्टली एक बटन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सबमिट बटन करने के बाद वो एक्शंस रिप्लाई करेगा. बराबर. इनपुट टाइप इक्वल टू बटन. ओके. वैल्यू इक्वल टू servlet 1. Okay. And on click we are calling on click servlet 1 file. ठीक है.
सो ये आप लोगों को अभी आउटपुट में दिखाई देना चाहिए। अभी बटन आ गया, नाउ आई क्लिक ऑन इट, इट शुड बी एक्शन, सर्वलेट एक्शन होना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है? तो फॉर्म एक्शन पे देते हैं। बराबर, सर्वलेट एक्शन वहाँ पे किधर है? माई पैक के अंदर है और हम लोग ने वो दिया हुआ है, तो आप लोग को एक स्लैश करके क्या लिखना पड़ेगा? फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, माई पैक, उल्टा स्लैश है या माई पैक सर्वलेट। क्यों पता चला कि फोल्डर का नाम है ना? नाउ इट शुड बी गो। नहीं हो रहा है तो एक काम कर सकते हैं, हाइपरलिंक में आता है क्या चेक कर लेते हैं। ए href इज इक्वल टू सर्वलेट माई पैक स्लैश सर्वलेट 1 विजिट डैश ए। अभी आना तो चाहिए, देखते हैं। When you click on visit, यहाँ पे सर्वलेट 1 फाइल का नाम द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, क्लास फिश नहीं ओपन कर रहा है, चेक कर लेते। फाइल का नाम क्या है? सर्वलेट 1। चलो अभी हम लोग को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल भी चेक करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, मैपिंग हुआ क्यों नहीं, ठीक है? तो वी हैव टू सी दैट, गो ऑन द वेब INF web.xml, यहाँ पे देखो सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 2 है, माई पैक है, सर्वलेट 1, सर्वलेट 2, मैपिंग तो हुआ है लेकिन लिंक क्यों नहीं हो रहा है? दैट पार्ट वी हैव टू अगेन सी। क्लीन एंड बिल्ड, ओके, रन द प्रोग्राम, click on visit. What they are given, request resource is not available, so Glassfish server open source editions we don't have the form, you have to check now क्या प्रॉब्लम है वो चेक करें। सर्वलेट क्लास डेमो 1 बराबर है माई फ्लैग सर्वलेट क्लास डेमो 1 डेमो सर्वलेट डैश क्लास माई पैक डॉट सर्वलेट 1, फाइल का नाम बराबर है, सब बराबर बराबर है। सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग सर्वलेट 1 स्लैश सर्वलेट 1, नेम ऑफ द पैकेज सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 बराबर है 9 डैश। अच्छा, इधर मैपिंग में सर्वलेट क्लास का नाम नहीं गया हुआ, तो वी आर टू राइट दैट सर्वलेट क्लास में, ठीक है? अभी पता चला ना एरर क्या होता है, पता चल गया। ये क्लास को हम लोग को वहाँ पे स्पेसिफाई करना है, कॉपी एंड मैपिंग में पेस्ट। वैसे ये सर्वलेट क्लास 2 मैपिंग पेस्ट, चेक कर, clean and build, run. What they are saying, model has not been deployment failed, URL पैटर्न दिया है, URL पैटर्न हम लोग निकाल लेते हैं, URL पैटर्न हम लोग निकाल लेते हैं और वापस बिल्ड करते हैं अगेन सक्सेस। नाउ अगेन रन के टाइम क्या देता है? मॉडल हैज नॉट बीन डिप्लॉयड बिल्ड फेल, ओके। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में web.xml लाइन नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 24, लाइन नंबर 13 यहाँ पे ये रहा है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर सर्वलेट 1
एक काम करते हैं, ये सेम फाइल कॉपी करके उसमें चेंजेस। अभी ना विजिट फिर भी वही आ रहा है सर्वलेट 1। व्हाट द प्रॉब्लम? ठीक है, एक काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पाथ वगैरह भी डिलीट कर लेते हैं। डिलीट, ये हाइपरलिंक पार्ट ले लेते हैं। सर्वलेट 2 में भी HTML का कॉन्टेक्स्ट पाथ डिलीट कर लेते हैं। Then we will see विजिट में क्यों नहीं आ रहा है? समथिंग मिस्टेक्स। एक मैं डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज करता हूँ और गूगल क्रोम में चेक कर लेता हूँ। कुछ तो रन टाइम एरर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा ये। नाउ सर्वलेट 1 पार्ट, सर्वलेट कॉन्टेस्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेस्ट डॉट सेट अरे कंपनी IBM आउटपुट में वेलकम टू फर्स्ट सर्वलेट। पहला फाइल देख के बाद में सेकंड फाइल करना चाहिए था। ठीक है, ये चलो अपन वैसे करते हैं। वापस एक बार एग्जांपल को रिवाइज करते हैं। न्यू प्रेजेंट जावा वेब एप्लीकेशंस, नेक्स्ट 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 finish. Okay, now here यहाँ पे पहले हम लोग इस फाइल को रन कर लेते हैं। यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है। चलो नेक्स्ट वन, इसको क्लोज। इसके अंदर एक हाइपर लिंक करके सर्वलेट 1 का लिंक दे देते हैं। href इज इक्वल टू सर्वलेट डेमो सर्वलेट, चलो नाम डेमो सर्वलेट 1 क्लोज विजिट स्लैश। ना इसके बाद सोर्स पैकेज में डायरेक्टली एक सर्वलेट फाइल बना के उसका नाम देते हैं डेमो सर्वलेट 1। फाइन, ऐड टू डिस्क्रिप्टर एंड फिनिश। ओके, अभी इसको हम लोग पहले रन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो चेक। या ये आ रहा है। चलो अभी इसके ही आगे हम लोग कंटिन्यू कोडिंग करें। यहाँ आ रहा है ना, तो इसके आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कोडिंग होगा हमारा सर्वलेट कॉन्टेस्ट विजिट टू द नेक्स्ट फाइल दैट इज डेमो सर्वलेट 2। डेमो सर्वलेट 2। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। या पहले ये हाइपरलिंक को कमेंट देता हूँ, पहले इतना ही रन कर लेता हूँ। ये हैव टू चेक दैट एट्रीब्यूट सेट हो रहा है कि नहीं और आउटपुट आ रहा है। क्लिक ऑन द विजिट, यस ये वेलकम टू सर्वलेट आ रहा है, फर्स्ट सर्वलेट।
राइट, अभी बराबर हुआ. नाउ वी हैव टू गो ऑन द अगेन डिफॉल्ट पैकेज, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट और उसके अंदर डेमो सर्वलेट 2 लेके नेक्स्ट ऐड टू डिस्क्रिप्टर एंड फिनिश. और उसके अंदर भी यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पाथ रहने दो वैसे ही. और यहाँ पे हम लोग पहले उसको क्या करेंगे, ये हाइपरलिंक निकाल लेते हैं और रन करके पहले चेक कर लेते हैं कि डेमो सर्वलेट 2 आ रहा है कि, एंड देन वी यूज द गेट. या विजिट आ रहा है. अभी नेक्स्ट हो गया, अभी समझ में आया. नाउ उसके बाद हम लोग सर्वलेट 2 के अंदर, डेमो सर्वलेट 2 के अंदर हम लोग का कोडिंग था. डेमो सर्वलेट 2 के अंदर हमारा कोडिंग क्या था, गेट्स एट्रीब्यूट कंपनी एंड वेलकम टू दिस फाइल. तो हम लोग उसी के अंदर सेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ देके n नंबर में वो वैल्यू स्टोर करेंगे और उसका डिस्प्ले करेंगे. रन. अभी तो आना चाहिए. फर्स्ट अपॉन फर्स्ट फाइल visit, it go on the servlet 1, welcome to first servlet. When you click on the next file visit, it go on the servlet 2, welcome to IB. You got the output? Yes student, hello. Yes sir. क्या किया समझ में आया? वापिस एक हाँ बार सर. दिखाता हूँ आप लोग को, क्लियरली देख लो. ओके, जो एग्जांपल उधर दिया हुआ है मैं डिलीट कर रहा हूँ ये पूरा. तो आप लोग देख लो. वापिस मैं एग्जांपल सेट कर लेता हूँ. और फिर आपको web.xml का फाइल भी दिखाऊंगा. चलो, गो ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट. देन वी हैव टू यूज द एनी वेब एप्लीकेशंस ओवर देयर. नेक्स्ट, फिनिश. आफ्टर दैट ये index.jsp में मुझे एक हाइपरलिंक क्यों बनाना पड़ा, वी हैव टू विजिट ऑन द सर्वलेट. सो मैंने क्या किया, href इज इक्वल टू, वहाँ पे पहले सर्वलेट का नाम दे दिया, डेमो सर्वलेट 1. ठीक है. और यहाँ विजिट करके विजिट ऑन सर्वलेट 1 मैं ऐसे स्पेसिफाई कर, विजिट ऑन सर्वलेट 1. ये बार बार इसको नाम चेंज करने बोलो, 2b26 सर्वलेट 1. ओके, एंड देन क्लोज द ए. आफ्टर दैट ये हाइपरलिंक हुआ, बराबर है. तो इसीलिए पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको कमेंट दिया. मैंने उसको चालू नहीं किया पहले. ओके, पहले उसको क्या करना है, रन करना है. क्या करना है हम लोग को, पहले रन करना है. तो यू हैव टू रन द फाइल, पहले रन करके चेक कर ले. मैंने रन किया, फाइल बिल्ड सक्सेसफुली दिखाया, विजिट किया, वहाँ पे हेलो फॉर विजिट ऑन सर्वलेट 1. अभी क्लिक मत करो क्योंकि अभी तक उसका कोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ. तो क्लोज ऑल टैब. फिर उसके बाद हम लोग ने सोर्स पैकेज में जाके पहला सर्वलेट फाइल रन, उसके अंदर वही फाइल का नाम लिया जो लिंकिंग में, डेमो सर्वलेट 1. ठीक है. देन वी क्लिक ऑन इट एंड ऐड टू डिस्क्रिप्टर करना भूलो मत. फिनिश. उसके अंदर अभी ये out.println का जो पार्ट है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ. आपका कोडिंग का भी पार्ट लेता हूँ. आपके कोडिंग में क्या लिखा था, खाली सर्वलेट कॉन्टेस्ट एंड गेट सर्वलेट कॉन्टेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके 2 नाम दिया, कंपनी का नाम IBM दे दिया. देन वेरिएबल, यानी कि ये एक वेरिएबल बन गया कंपनी, उसके अंदर IBM स्टोर हो गया. एंड वी आर गिविंग द हाइपरलिंक टू द अनदर फाइल सर्वलेट 2. तो यहाँ पे हम लोग ने वो पार्ट कॉपी किया, पेस्ट किया और एक हेडर फाइल खाली ऐड करना है. वो येलो कलर पे क्लिक करके वी आर ऐड इंपोर्ट फॉर javax.servlet. इसको भी रन करने के पहले यहाँ पे हाइपरलिंक जो दिया है उसको कमेंट दे दिया मैंने, एंड देन आई रन इट. When you click on visit on servlet, see down we are getting the output welcome to first servlet. लेकिन वो हाइपरलिंक आया नहीं है क्योंकि मैंने हाइपरलिंक का पार्ट कट किया. तो यहाँ पे वापस हाइपरलिंक कमेंट निकाल लेता हूँ. एंड देन वी गो ऑन द सोर्स पैकेज, राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट. उसमें कौन सा फाइल का नाम था हमारा, डेमो सर्वलेट 2. वहाँ पे फाइल का हाइपरलिंक चेंज कर लेते हैं. क्या दिया था, डेमो सर्वलेट 2. ठीक है.
So we are giving that file name, right click, new servlet, demo servlet 2. ठीक है, then click on next, add to descriptor and click on finish. इसके अंदर भी out.println का जो पहले से कोडिंग है वो निकाल दिया मैंने, और उसके अंदर सेकेंड फाइल का कोडिंग है हमारा खाली सर्वलेट कॉन्टेस्ट और ये 3 लाइन्स कोड गेट एट्रीब्यूट का कोडिंग देखो, सर्वलेट कॉन्टेस्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेस्ट स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया n, उसके अंदर गेट एट्रीब्यूट करके उसका नाम कंपनी है उसका वैल्यू इधर स्टोर किया, तो n के अंदर IBM स्टोर हुआ और वो प्रिंट हो गया वेलकम टू +n, यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, गॉट इट। सो वहाँ पे हाइपरलिंक निकाल दिया है और यहाँ रन कर रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं, रन द फाइल। नाउ क्लिक ऑन विजिट ऑन सर्वलेट 1, क्या आया, वेलकम टू फर्स्ट सर्वलेट, विजिट ऑन सर्वलेट 2, वेलकम टू IBM। वो एट्रीब्यूट देखो, जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने सर्वलेट 1 में सेट किया था वो एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गॉट इट। सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट, यस Yes, sir. अभी हमारे पास 1 मिनट है, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू करना। खाली आप लोगों को अभी मैं web.xml 9:50 को आपको रीजॉइन होना है। web.xml का फाइल देखो आप लोग, जो उन्होंने दिखाया था, सर्वलेट का नाम डेमो सर्वलेट पहला था, उसका क्लास नाम था डेमो सर्वलेट, फिर सर्वलेट का नाम वापिस देखो, ये सर्वलेट टैग है, सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, अनदर सब टैग इज देयर, तो दिस इज अ web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। सेकेंड फाइल का नाम डेमो सर्वलेट 2 डेमो सर्वलेट 2, लेकिन मैपिंग में देखो, मैपिंग मतलब व्हेन यू क्लिक ऑन द विजिट ऑन सर्वलेट 1 ये फाइल ओपन होगा, व्हेन यू क्लिक ऑन द विजिट अनदर फाइल तो ये डेमो सर्वलेट 2, दिस इज द मैपिंग। और सेशन देखो, यहाँ सेशन टाइम आउट, आपको सेशन के बारे में बताना है तो इसके अंदर सेशन भी आ गया है, सेशन